वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां अपने पटल में करने लायक दिखता सलामी करता हूँ सबको ये हम अदब के साथ कदम से कदम मिलाते हुए On this day, I salute the great leaders of our freedom movement, Mahatma Gandhi ji, Gopal Krishna Gokhale ji, Bal Gangadhar Tilak ji, V.O. Chidambaram Pillai ji, Lala Lajpat Rai, Chandrasekhar Azad, Pandit Jawaharlal Nehru ji, Sardar Patel ji, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh ji, Maulana Abul Kalam Azad ji, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji, and all सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ ही देश के समस्त महान नेताओं का नमन करता हूँ। We all know holy land of Jharkhand. साथ ही झारखंड के महान सपूत का भी हम नमन करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू जी, नीलांबर पीतांबर जी, फूलो जानू जी, ठाकर विश्वनाथ सखदेव स्पीशियस होली डे
also salute our brave soldiers who defend our interior and the police and the central armed police forces who toil day and night to maintain the law and order and keep our एवं देश के भीतर विधि व्यवस्था को बनाए रखने एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पुलिस बल एवं कर्मचारी बलों का मैं अभिनंदन करता हूँ। The unique brilliance and foresight with which the Constitution was drafted to be the custodian of people's aspirations and their right was made self-evident in the last 74 years of our republic. जिस विलक्षण प्रतिभा और दूरदर्शिता के साथ जनता की आशाओं और अधिकारों के संरक्षण के रूप by 2047. विकसित भारत अभियान 2047 को साकार करने के लिए विकास की इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल किया जा रहा है। सिंचाई योजना to expand irrigation facilities for farmers by constructing 1 lakh wells. हमारे राज्य में सरकार के द्वारा विकसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख कुओं का निर्माण किया जाना है। To expand irrigation facilities in the state, 49 irrigation schemes have been renovated, which has some 59,000 hectares of land under irrigation. Further, 24 other schemes are in pipeline, which will add 42,000 hectares of additional land under irrigation. राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कल 49 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 54,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल हो पाई है। To turn agriculture as the profitable venture, the PM German scheme has been initiated to bring tribal communities, particularly rural tribal groups, into mainstream. पीएम जनगणना योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों को विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों को मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। Under this scheme, PVTGS housing access to clean drinking water, improved healthcare, education, nutrition, road and telecommunications connectivity, as well as opportunities for sustainable livelihoods are being ensured to the all PVTGS groups in the remotest part of our nation. इस योजना के अंतर्गत आवास, पीने के स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संचार एवं रोजगार के अवसर आदि जनजातीय समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि उनका समग्र विकास हो सके और वो विकास की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ सके। Our government is making efforts to maintain the balance of the ecosystem and conserve the environment. हमारी सरकार राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। For this, through Mukhyamantri Jalwan scheme and other schemes, more than 2 crore saplings have been planted. Special emphasis has been given to maintain and enhance the forest cover of our state. इस क्रम में मुख्यमंत्री जनवन योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2023-24 में लगभग 29,000 हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राज्य में वनाच्छादन को बढ़ाने का सरकार का प्रयास लगातार जारी है। Our state has the infinite potential for ecotourism. टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पलामू व्याघ्र परियोजना, दलमा एवं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रय में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वहां आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। These projects created direct and indirect employment opportunities for our own people, as well as the revenue is being generated for the state government. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से राज्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिए राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। Our government is committed to schools and other schools. Quality education is being ensured
for the children of Jharkhand. इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, एकलव्य विद्यालयों एवं वन्य विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। Providing 100 unit free electricity is benefiting more than 19 lakh consumers of our state. सतत विकास के लिए राज्य की आधारभूत संरचना का मजबूत होना नितांत जरूरी है। आधारभूत संरचना मजबूत होगी तभी राज्य के विकास को अपेक्षित गति मिल सकेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार बिजली, सड़क, परिवहन आदि विषयों पर सुधार हेतु गंभीरता से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों को 24/7 बिजली उपलब्ध कराने के अपने संकल्प की ओर तीव्र गति से कार्यरत है। विद्युत आपूर्ति कार्य में गुणात्मक सुधार हेतु नए विद्युत उपशक्ति केंद्रों का निर्माण, 33/11 kV लाइन का निर्माण, पुराने लाइनों का सुदृढ़ीकरण, नए ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन आदि कार्य प्राथमिकता के तहत किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा संचालित 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रति माह 19 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। To accelerate the growth of our state, the government is constantly developing the road network in the whole state. In this financial year, constructions of 81 roads, 2 bridges and 3 flyovers were completed. 64 new schemes of roads and bridges to the tune of 1,714 crore are in progress. राज्य के विकास के रथ को गति प्रदान करने हेतु हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल पूरे राज्य में बिछा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 296 करोड़ की लागत से 81 पथ, 2 पुल तथा 3 पथ ऊपरी पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में 1714 करोड़ राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। रेल परिचालन की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है। हमारे झारखंड के सभी रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का 886.7 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके माध्यम से थैंक यू मीनाक्षी जी। एवं पराक्रम के साथ हिस्सा लेने के लिए आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों द्वारा फर्स्ट इन कमांड के रूप में सेना के मेजर अंकुश चौधरी और पूछे मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। सेना के मेजर अंकुश चौधरी को सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय। तालियां भी आपकी ओर से सम्मान स्वरूप। और उसके बाद सेकेंड इन कमांड के रूप में आज इस परेड में थे परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक श्री राजीव रंजन। आपका सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा है। उसी का वतन, वतन का वही, जान दे दी जो अपने वतन के लिए। इसी कामना के साथ ये जवान इस वक्त डीआईजी बोकारो, डीआईजी चाईबासा और साथ में रांची जिला सहित कई जिलों के एसपी आप रह चुके हैं। असाधारण आसूचना कुशलता पदक आपको 3 से 8 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक, मुख्यमंत्री द्वारा वीरता पदक, राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा साधारण आसूचना कुशलता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। भारतीय पुलिस सेवा पुलिस प्रदान किया जा रहा है। और इनके बाद आएंगे असाधारण आसूचना कुशलता पदक के कुशलता पदक से। और इसके बाद आएंगे पुलिस निरीक्षक एम
श्रद्धालुओं द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पुलिस निरीक्षक इमदाद अंसारी असाधारण जेम्स टोपो सहायक अवर निरीक्षक और इनके बाद सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त करेंगे सहायक अवर निरीक्षक रजनीश कुमार, चाईबासा जिला में आप पदस्थापित हैं। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर्तव्यों द्वारा। और उसके बाद आएंगे हवलदार सुभाष धोबी, झारखंड सशस्त्र पुलिस 7 हजारीबाग में आपका पदस्थापन है। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से आपको मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा अलंकृत किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड को विसर्जित करने की अनुमति चाहता हूँ। Parade second in command. Take charge. Parade for instruments